ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے جرمنی کی، جو کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جرمنی کے ماضی سے حال تک کی معلومات پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جرمنی کا امیر ترین شخص جارج شفلر ہے، جس کی دولت کی مالیت 24.5 ارب ڈالر ہے۔ جرمنی نے ایک وقت میں پاکستان سے 10,000 ہنرمند افراد کو مانگا تھا۔ پاکستان نے کیا جواب دیا؟ ہمارے چینل پر نئے آنے والوں سے یوٹیوب پر موجود اسپائڈر بل اور بون ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کی علامت پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ جرمنی وسطی یورپ میں واقع ایک ملک کا نام ہے۔ اس کا سرکاری نام وفاقی جمہوریہ جرمنی ہے۔ اسے انگریزی زبان میں جرمنی، جرمن زبان میں ڈوئچ لانڈ اور عربی زبان میں المانیہ کہا جاتا ہے۔ اس کی قومی زبان جرمن ہے۔ جرمنی کی سرحد 9 ملکوں کے ساتھ لگتی ہے۔ جرمنی کے شمال میں بحر شمالی ڈنمارک اور بحر بالٹک واقع ہیں۔ مشرق میں پولینڈ اور چیک جمہوریہ، جنوب میں آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ اور مغرب میں فرانس، لگزمبرگ، بیلجیم، نیدرلینڈ واقع ہیں۔ جرمنی کا دارالحکومت برلن ہے اور ملک کا سب سے بڑا شہر بھی۔ جرمن پارلیمان کی عمارت کے اوپر شیشے کا گنبد ہے۔ لوگ اس پر ریمپ کا استعمال کرتے ہوئے چڑھ سکتے ہیں۔ گنبد یہ بتاتا ہے کہ لوگ حکومت سے اوپر ہیں اور حکومت شفاف ہونی چاہیے۔ چارلس پنجم جرمنی کا بادشاہ تھا۔ اس نے 1316 سے 1376 تک حکومت کی۔ وہ روزانہ 4 مرتبہ کھانا کھاتا تھا۔ وہ 4 زبانیں جانتا تھا۔ اس نے 4 شادیاں کی۔ اس کے 4 محل، ہر محل میں 4 کمرے تھے اور 4 منزلیں تھیں۔ اس کے شاہی تاج میں 4 ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بستر پر 4 معالج موجود تھے۔ وہ 19 نومبر 1376 کو 4:04 پر فوت ہوا۔ موجودہ جرمنی 16 ریاستوں پر مشتمل ہے۔ اس کے اپنے آئین ہیں۔ تنظیمی لحاظ سے زیادہ تر خود مختار ہیں۔ جرمنی 403 اضلاع میں تقسیم کیا گیا ہے، جسے جرمن زبان میں کریز کہا جاتا ہے، جن میں سے 301 دیہی اضلاع ہیں اور 102 شہری اضلاع ہیں۔ بویریا سب سے بڑی ریاست ہے۔ ان میں سے برلن، ہمبورگ اور بریمن صرف ایک شہر اور اس سے ملحق علاقے پر مشتمل ہے۔ ان ریاستوں میں آبادی کے لحاظ سے نوردرائن ویسٹفالن اور رقبے کے لحاظ سے بویریا سب سے بڑی ریاست ہے۔ جرمنی کے سب سے بڑے شہر یہ ہیں: برلن دارالحکومت ہے اور اس کی آبادی 33,91,407 افراد پر مشتمل ہے۔ ہمبورگ، اس کی آبادی 17,36,752 افراد پر مشتمل ہے۔ میونخ، اس کی آبادی 13,97,537۔ کولن 9,75,907۔ فرینکفرٹ میں 6,57,126 نفوس آباد ہیں۔ اگر جرمنی کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو بڑی المناک بھی ہے اور دلچسپ بھی، اور ترقی کرنے کا فارمولہ بھی۔ یہ 28 جون 1914 کا واقعہ ہے، جب ایک سربیا کے باشندے نے آسٹریا کے شہزادے ہسبرگ آرکیڈیوک فرانز فرڈینینڈ کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ اسی واقعہ کی بنیاد پر 28 جولائی 1914 کو آسٹریا نے سربیا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ پہلی عالمی جنگ 20ویں صدی کا پہلا بڑا عالمی تنازع تھا جو اس قتل کی وجہ سے شروع ہوا۔ جرمنی نے آسٹریا کا ساتھ دیا۔ اس طرح یہ واقعہ ایک عظیم جنگ کی شکل اختیار کر گیا۔ پہلی جنگ عظیم میں تقریباً 60 لاکھ فوجی اور عام لوگ مارے گئے، جبکہ بعض کے نزدیک 1 کروڑ ہلاک ہوئے اور بعض کے نزدیک کل ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 2 کروڑ تھی۔ اس جنگ میں 2 کروڑ 10 لاکھ کے لگ بھگ افراد زخمی بھی ہوئے۔ ہلاکتوں کی اتنی بڑی تعداد کی وجہ مشین گن جیسے نئے ہتھیاروں کا استعمال تھا۔ 1 جون 1916 کو ایک دن کے اندر سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں۔ سومے میں موجود برطانوی فوج کے 57,000 فوجی ایک دن میں مارے گئے۔ جرمنی کے 17,73,700 اور روس کے 17 لاکھ فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئیں۔ فرانس کو اپنی متحرک فوج کے 16% حصے سے محروم ہونا پڑا۔ اس جنگ میں ایک طرف جرمنی، آسٹریا، ہنگری، ترکی اور بلغاریہ، اور دوسری طرف برطانیہ، فرانس، روس، اٹلی، رومانیہ، پرتگال، جاپان اور امریکہ تھے۔ 11 نومبر 1918 کو جرمنی نے جنگ بند کر دی اور صلح کی درخواست کی۔ 28 جون 1919 کو فری کین کے مابین معاہدہ ورسائی ہوا۔ نازی جرمنی 1933 سے 1945 کے دوران کے جرمنی کو کہا جاتا ہے، جس کی قیادت ہٹلر اور قومی اشتراکی جرمن مزدور جماعت کر رہے تھے۔
30 जनवरी 1933 को एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर मुकर्रर कर दिया गया। दूसरी जंग अजीम का आगाज 3 सितंबर 1939 को हुआ, जब पोलैंड पर जर्मनी ने हमला कर दिया और बरतानिया और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। 1940 तक जर्मनी का पलड़ा भारी रहा, जब तक कि जर्मनी ने रूस पर हमला नहीं कर दिया, और यही गलती आगे चलकर जर्मनी की हार तय करने वाली थी। दूसरी जंग अजीम के दौरान जर्मनी ने यूरोप और शुमाली अफ्रीका का बड़ा हिस्सा फतह कर लिया। ताहम दीगर अक़वाम ख़ुसूसन इटली और जापान के साथ इत्तेहाद के बावजूद जर्मनी जंग हार गया। इस जंग में 61 मुल्कों ने हिस्सा लिया। इस जंग में फौजियों की तादाद 10 करोड़ से ज़ायद थी। तकरीबन 40 मुल्कों की सरजमीन जंग से मुतासर हुई और तकरीबन 6 करोड़ से 8 करोड़ लोग हलाक हुए, जिनमें से 2 करोड़ रूसी, 65 लाख जर्मन लुकमाए अजल बने और नाजी जर्मनी का खात्मा हो गया। जंग के बाद सोवियत इत्तेहाद, बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस की फातेह इत्तेहादी कुव्वतों ने इस पर कब्जा कर लिया। जंग अजीम ख़त्म हुई, हिटलर ने खुदकशी कर ली, जर्मनी की फ़ौज ख़त्म हो गई। मुल्क मशरकी जर्मनी और मगरबी जर्मनी में तकसीम हो गया। जर्मनी के 114 छोटे बड़े शहर तबाह हो गए। मुल्क की 20% इमारतें मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो गई। ज़राअत 65% कम हो गई। बिजली बंद थी, सड़कें तबाह थीं, बंदरगाहें नाकाबिले इस्तेमाल थी, इंडस्ट्री सिफर थी, करेंसी ख़त्म हो चुकी थी। लोग खरीदो फरोख्त के लिए बार्टर सिस्टम पर मौजूद थे, चीज़ें देकर चीज़ें ली जाती थी। 1945 से लेकर 1955 तक 10 साल जर्मनी के 1 करोड़ 40 लाख लोग कैंपों में पनाह गुज़ीर रहे। 1962 तक जर्मनी अमरीकी इमदाद पर चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था। दुनिया के 14 ममालिक जर्मनी को इमदाद देते थे और दिलचस्प हकीकत ये है, इन इमदाद देने वाले 14 मुल्कों में हमारा वतन अजीज़ पाकिस्तान भी शामिल था। अयूब खान के दौर में पाकिस्तान ने 20 साल के लिए जर्मनी को 120 मिलियन का कर्ज दिया और जर्मनी में इस मेहरबानी की वजह से आज भी अच्छे अल्फाज में शुक्रिया अदा किया जाता है। 50 साल पहले जर्मनी की ये सूरत हाल थी और आज क्या सूरत हाल है, जानिए। जर्मनी की आज बरामदात 2100 अरब डॉलर से ज़ायद है। आप तसव्वुर करें, 50 साल पहले हमने जर्मनी को 12 करोड़ रुपए कर्ज दिया था, जबकि जर्मनी आज रोजाना 12 करोड़ रुपए की पेपर पिन बनाता है। इसकी वजह क्या है? वो कैसे तरक्की कर गए? इसकी वजह है जर्मनी के हुक्मरानों की सादगी। जर्मनी में 80.8% जर्मन आबाद हैं, 11.7% दूसरे यूरोपीय बशिंदे, 6.2% एशियन, 3.4% तुर्क, 1.3% अरब और 0.6% अफ्रीकन और 0.5% अमेरिकन आबाद है। जर्मनी अक़वाम मुत्तहिदा, नेटो और G8 का रुकन है। ये यूरोपियन यूनियन का तासीसी रुकन और यूरोप का सबसे ज़्यादा आबादी वाला और सबसे ताकतवर और दुनिया की तीसरी बड़ी मैशियत रखने वाला मुल्क है। जर्मनी में 59.3% असाई आबाद हैं, 34.4% दहरिये, 5.5% इस्लाम और 0.8% दूसरे मज़ाहिब आबाद हैं। जर्मनी के मौजूदा सदर फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर हैं और मुल्क के चांसलर एंजेला मर्केल है। जर्मनी का कुल रकबा 3,57,168 किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया का 62वां बड़ा मुल्क है। क्या आप जानते हैं जर्मनी की एक स्ट्रीट का नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर है। ये स्ट्रीट हेडलबर्ग में है। दुनिया की पहली छपने वाली किताब भी जर्मन थी। जर्मनी दुनिया की सबसे ज़्यादा किताबें पब्लिश करने वाला मुल्क है। जर्मनी में हर साल 94,000 से ज़ायद नई किताबें पब्लिश होती हैं और जर्मन दुनिया में बुक रीडिंग में भी अव्वलीन ममालिक में शामिल है। जर्मनी की कुल आबादी 8 करोड़ 30 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से 16वां बड़ा मुल्क है। जर्मनी का GDP 4.18 खरब डॉलर है, यूरोप का सबसे अमीर तरीन मुल्क है और दुनिया की तीसरी मजबूत तरीन मैशत है। जर्मनी में फीकस आमदनी 50,425 डॉलर है, जो दुनिया में 17वें नंबर पर शुमार होती है। जर्मनी के 65% ऑटोबान यानी हाईवे पर गाड़ी की कोई हद मुकर्रर नहीं, आप फुल मीटर पर गाड़ी दौड़ा सकते हैं। जर्मन ज़ुबान दुनिया में तेज़ी से सीखी जाने वाली ज़ुबान है। जर्मन ज़ुबान यूरोप में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भी ज़ुबान है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, लक्समबर्ग, लिechtenstein की कौमी ज़ुबान भी जर्मन है। जर्मनी का एक लफ्ज़ 79 हरूफ पर मुश्तमिल है। जर्मन ज़ुबान की 35 इलाकाई ज़ुबानें हैं। जर्मनी में कॉलेज तक तालीम फ्री है, यहाँ तक कि गैर मुल्कियों के लिए भी। जर्मनी में ब्रेड 300 से ज़ायद सैकों में दस्तयाब है। जर्मनी की करेंसी यूरो है।
जर्मनी टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे। 60 की दहाई में जर्मनी ने पाकिस्तान से 10,000 हुनरमंद अफराद मांगे, मगर हुकूमत ने वर्कर्स जर्मनी भिजवाने से इनकार कर दिया। इसके बाद जर्मनी ने तुर्की से दरख्वास्त की। तुर्की की हुकूमत ने अपने लोग जर्मनी भेजे। इसी एक फैसले की वजह से आज जर्मनी में 30 लाख से ज़ायद टर्किश आबाद है। जर्मनी में ड्राइविंग राइट साइड है, जर्मनी का कॉलिंग कोड +49 है और जर्मनी का डोमेन नेम .de है। जर्मनी में पहली बार एक ऐसी सुपर मार्केट खुल गई है जहां फालतू यानी बचा हुआ खाना वगैरह फरोख्त किया जाएगा। जहां खास बात यह है कि कीमत खरीदार की मर्जी होगी। जर्मनी दुनिया का पहला मुल्क था जिसने डे लाइट सेविंग सिस्टम अपनाया था और ये 1916 में लागू हुआ। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में वीनस से भी ज़ायद पुल है, यानी 960 पुल हैं। दिलचस्प बात यह है कि जर्मनी में जेल से भागने की कोई एक्स्ट्रा सज़ा नहीं है। जर्मनी में ऐसे नाम रखने पर पाबंदी है जिससे उनकी जिनस का नहीं पता चलता कि लड़की है या लड़का। जैसे हमारे यहाँ आंटी नसीम भी हैं और अंकल नसीम भी, इस तरह अपनी फैमिली नेम का पहला नाम रखने पर भी पाबंदी है। जर्मनी यूरोपीय यूनियन का सबसे ज़्यादा गुंजान आबादी वाला मुल्क है। जर्मनी का 1/3 हिस्सा जंगलात से घिरा हुआ है। जर्मनी यूरोप का 7वां बड़ा मुल्क है जिसके 3011 मुरब्बा मील रकबे पर पानी है। जर्मनी दुनिया की सबसे ज़्यादा कारें बरामद करने वाले ममालिक में से हैं और दुनिया के टॉप ब्रांड कारें जर्मन हैं, जिनमें मर्सिडीज, ऑडी, वॉक्सवैगन, BMW जर्मन मेड है। बर्लिन का स्टेशन यूरोप का सबसे बड़ा ट्रेन स्टेशन है। बर्लिन शहर फ्रांस के पेरिस से 9 गुना बड़ा शहर है। जर्मनी में इंटरनेट की एवरेज स्पीड फिक्स लाइन 40.38 Mbps और मोबाइल पर 24.26 Mbps है, जो दुनिया में 34वें नंबर पर शुमार होती है। जर्मनी जंगे अजीम दोइम की तबाहहाली के बाद तालीम की वजह से खाक से उठा और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन गया। अगर आप जर्मनी में तालीम हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास कम अज़ कम इंटरमीडिएट FA या FSC का सर्टिफिकेट होना लाजमी है, यानी आपकी कम अज़ कम तालीम 12 साल होनी चाहिए। पाकिस्तान के किसी भी तालीमी इदारे या यूनिवर्सिटी से बैचलर या मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद आप बराह रास्त जर्मन यूनिवर्सिटियों के इंग्लिश या जर्मन कोर्सेज में एडमिशन लेने के अहल हो जाते हैं। लेकिन FA या FSC के बाद आप बराह रास्त यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए पहले आपको किसी कॉलेज में दाखिला लेना पड़ता है। याद रहे कि जर्मन यूनिवर्सिटियों के बरक्स कॉलेज में तालीम सिर्फ जर्मन ज़बान में दी जाती है। यही वजह है आपको एडमिशन और वीज़ा अप्लाई करने से पहले पाकिस्तान के किसी अदारे से जर्मन ज़बान की इब्तदाई तालीम हासिल करना हो। जर्मनी आने के बाद और कॉलेज में बाकायदा तालीम के आगाज़ से पहले आपको जर्मन ज़बान का टेस्ट देना पड़ता है, जिसे पास करने के बाद ही आप कॉलेज की क्लासों में बैठ सकते हैं। अगर आप पहली मरतबा इस टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं तो आपको ये इम्तिहान पास करने के लिए मज़ीद 2 मौके दिए जाते हैं। इस तरह जर्मन ज़बान का टेस्ट पास करने के लिए आपके पास 1 साल का अरसा होता है। यूरोप के दूसरे ममालिक की निस्बत जर्मनी में आसानी से स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है, बस जर्मन ज़बान आनी चाहिए। जर्मन रियासत बवारिया में शराब सरकारी तौर पर खानों में शामिल है। जर्मनी में पब्लिक मकामात पर सिगरेट नोशी पर पाबंदी है, लेकिन शराब नोशी पर नहीं। दुनिया में दूसरे नंबर पर शराब नोशी जर्मनी में होती है और 1500 से ज़ायद ब्रांड में मिलती है। जर्मनी में अंगूठा और उंगली को लहराने का मतलब है आप शराब मांग रहे हैं। 1976 में मगरबी जर्मनी फुटबॉल मैच हार गया तो जर्मन खिलाड़ियों को गोली मार दी गई थी। क्रिसमस ट्री की इस रस्म जर्मनी से निकली थी। जर्मनी में 400 से ज़ायद मरतबा ज़लज़ले आए, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। जर्मनी में सबसे ज़्यादा टैक्सी मर्सिडीज कारें हैं। जर्मनी में 2100 से ज़ायद गिरजाघर हैं। दुनिया की तंग तरीन गली रोड लिंगटन में है। उसे सुपर यूरोफ्रोस्टिस कहा जाता है, जो सिर्फ 31 सेंटीमीटर यानी 1 पाउंड जितनी खुली है। बर्लिन में चांसलर का दफ्तर मकामी तौर पर वॉशिंग मशीन के तौर पर जाना जाता है। जंग अजीम के बाद जर्मनी में 3 औरतों के लिए सिर्फ 1 मर्द जिंदा रहा था। 1999 से लेकर 2009 तक जर्मनी में तकरीबन 2000 स्कूल बच्चों की कमी की वजह से बंद हुए। गुज़श्ता दहाई के मुकाबले में जर्मनी की आबादी में 2 लाख की कमी आई है। हैमबर्गर का नाम जर्मनी के हैमबर्ग से लिया गया है। यूट्यूब की 60% से ज़ायद वीडियो जर्मनी में ब्लॉक हैं। जंग अजीम के गोले आज तक ज़मीनों से निकलते हैं। फांटा जर्मनी में तैयार की गई क्योंकि जंग अजीम अव्वल के दौरान कोका कोला पर पाबंदी थी। जंग अजीम अव्वल के दौरान इंग्लैंड, रूस और जर्मनी के बादशाह सब फर्स्ट कज़न थे।
جرمن فٹ بال کے کھلاڑی ماسٹ اوزیل نے برازیل میں 23 بچوں کی سرجریوں کی ادائیگی کے لیے ورلڈ کپ میں ملنے والی 3 لاکھ یورو کا بونس کا عطیہ کر دیا تھا۔ برلن میں ایک تعمیراتی منصوبہ ہے جہاں وہ ایک عیسائی چرچ، ایک مسجد اور یہودیوں کا سیناگوگ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ نازیوں کی طرح سلوٹ مارنے پر جرمنی میں آج بھی 3 سال قید کی سزا ہے۔ آسمان سے مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی اپنی مختلف اسٹریٹ لائٹس کی وجہ سے مختلف نظر آتے ہیں۔ جرمنی کی افواج میں فوجیوں کو کسی بھی حکم کی نافرمانی کرنے کی اجازت ہے جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ضمیر کے مطابق انسانی اقدار کی خلاف ورزی کی جائے گی۔ ہیمبرگ نے 2016 میں حکومتی عمارتوں میں کافی پودوں پر پابندی عائد کر دی تھی کیونکہ وہ غیر ضروری فضلہ بناتے ہیں اور ایلومینیم پر مشتمل ہیں۔ جرمن شہری ویزا کے بغیر 177 ملکوں میں سفر کر سکتے ہیں، جو دنیا میں پہلے نمبر پر بنتا ہے۔ آپ جرمنی میں یہودیوں کو کرائے پر لے سکتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ گپ شپ کریں اور نفرت کو کم کر سکیں۔ جرمنی میں 80% لین دین نقد رقم کے ذریعے ہوتا ہے۔ جرمنی کا قومی درخت اوک ہے۔ جرمنی کا سب سے پسندیدہ ترین کھیل فٹ بال ہے۔ جرمنی میں خراٹوں کا بھی میوزیم ہے۔ جرمنی کے کوناڈزو نامی ایک شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے دنیا کا پہلا پروگرام ایبل کمپیوٹر 1936 میں بنایا اور اس کمپیوٹر کا نام Z1 تھا۔ جرمنی کی پرہجوم شاہراہ آٹوبان پر گاڑی کا ایندھن ختم ہو جانے پر آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہاں سفر کے لیے پیٹرول کی ایکسٹرا بوتل رکھنا ضروری ہے۔ جرمنی کی لیبارٹری میں ماہرین نے گندم، مٹر، سویابین اور لوپن بین سے مصنوعی گوشت تیار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے مختلف اجناس سے گوشت بنانے کا مقصد یہ ہے جنہیں کسی ایک جنس سے الرجی ہو تو وہ دوسری جنس سے تیار کردہ مصنوعی گوشت لے سکتے ہیں۔ سونا دنیا کی سب سے بڑی تجارتی شے ہے۔ کسی ملک کے سونے کے ذخائر ہی سے اس کی کرنسی کی قدر و قیمت کا تعین ہوتا ہے اور اسی سے اس ملک کی معیشت ترقی کی منازل طے کرتی ہے یا روبہ زوال ہوتی ہے۔ جرمنی سونے کے ذخائر کی وجہ سے دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ جرمنی کے پاس 3384 ٹن سونا موجود ہے، لیکن جرمنی نے اپنے سونے کے ذخائر کا صرف 1/3 اپنے ملک میں رکھا ہوا ہے۔ جرمنی کا باقی تمام سونا دیگر ملکوں میں پڑا ہے۔ اس کا 45% سونا امریکہ، 13% لندن، 11% پیرس میں رکھا ہوا ہے۔ جرمنی کی ایکٹیو آرمی کی تعداد 60,431 ہے جو ملکی دفاع کے لیے ہر دم تیار ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری جرمنی کے متعلق چھوٹی سی کوشش۔ امید ہے آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔